1 ईयर बाइबल रीडिंग प्लान, 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। मैथ्यू 13th चैप्टर 24 से 43 वर्सेस तक, जेनेसिस 44 चैप्टर 45 चैप्टर। मैथ्यू 13th चैप्टर 24 to 43 वर्सेस, जेनेसिस 44 to 45 चैप्टर्स। 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय 24 से 43 वचन, उत्पत्ति 44 और 45 अध्याय। 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय 24 से 43 वचन और उत्पत्ति 44 और 45 अध्याय। हम इंग्लिश में इसे किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे, हिंदी में PSI बाइबल में से पढ़ेंगे। मैथ्यू 13th चैप्टर 24 वर्स से पढ़ना शुरू करेंगे। Another parable put he forth unto them, saying, The kingdom of heaven is likened unto a man which sowed good seed in his field. But while men slept, his enemy came and sowed tares among the wheat, and went his way. But when the blade was sprung up and brought forth fruit, then appeared the tares also. So the servants of the householder came and said unto him, Sir, didst not thou sow good seed in thy field? From whence then hath it tares? He said unto them, An enemy hath done this. The servants said unto him, Wilt thou then that we go and gather them up? But he said, Nay, lest, while ye gather up the tares, ye root up also the wheat with them. Let both grow together until the harvest, and in the time of harvest I will say to the reapers, Gather ye together first the tares, and bind them in bundles to burn them, but gather the wheat into my barn. Another parable put he forth unto them, saying, The kingdom of heaven is like to a grain of mustard seed, which a man took and sowed in his field, which indeed is the least of all seeds, but when it is grown, it is the greatest among herbs, and becometh a tree, so that the birds of the air come and lodge in the branches thereof. Another parable spake he unto them, The kingdom of heaven is like unto leaven, which a woman took and hid in 3 measures of meal till the whole was leavened. All these things spake Jesus unto the multitude in parables, and without a parable spake he not unto them, that it might be fulfilled which was spoken by the prophet, saying, I will open my mouth in parables, I will utter things which have been kept secret from the foundation of the world. Then Jesus sent the multitude away, and went into the house, and his disciples came unto him, saying, Declare unto us the parable of the tares of the field. He answered and said unto them, He that soweth the good seed is the Son of Man. The field is the world. The good seed are the children of the kingdom, but the tares are the children of the wicked one. The enemy that sowed them is the devil. The harvest is the end of the world, and the reapers are the angels. As therefore the tares are gathered and burned in the fire, so shall it be in the end of this world. The Son of Man shall send forth his angels, and they shall gather out of his kingdom all things that offend, and them which do iniquity, and shall cast them into a furnace of fire. There shall be wailing and gnashing of teeth.
Then shall the righteous shine forth as the sun in the kingdom of their Father. Who hath ears to hear, let him hear. मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय 24 वचन से आगे। जंगली बीज का दृष्टांत। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छे बीज न बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहाँ से आए? उसने उनसे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर लें? उसने कहा, नहीं, ऐसा न हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय मैं काटने वालों से कहूँगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोरकर जलने के लिए उनके गट्ठे बांध लो और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। राई के बीज का दृष्टांत 31 वचन से आगे। उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य राई के एक दाने के समान है जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वह सब बीजों से छोटा तो होता है, पर जब बढ़ जाता है तब सब साग पात से बड़ा होता है और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। खमीर का दृष्टांत 33 वचन से आगे। उसने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया। स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटा में मिला दिया और होते होते वह सब खमीरा हो गया। दृष्टांतों का प्रयोग 34 वचन से आगे। ये सब बातें यीशु ने दृष्टांतों में लोगों से कही, और बिना दृष्टांत वह उनसे कुछ न कहता था कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। मैं दृष्टांत कहने को अपना मुँह खोलूँगा। मैं उन बातों को जो जगत की उत्पत्ति से गुप्त रही है प्रकट करूँगा। जंगली बीज के दृष्टांत की व्याख्या 36 वचन से आगे। तब वह भीड़ को छोड़कर घर में आया और उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, खेत के जंगली दाने का दृष्टांत हमें समझा दे। उसने उनको उत्तर दिया, अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। खेत संसार है। अच्छा बीज राज्य की संतान और जंगली बीज दुष्ट की संतान है। जिस शत्रु ने उनको बोया वह शैतान है। कटनी जगत का अंत है और काटने वाले स्वर्गदूत हैं। अतः जैसे जंगली दाने बटोरे जाते और जलाए जाते हैं, वैसा ही जगत के अंत में होगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। जिसके कान हो वह सुन ले। Genesis chapter 44. Joseph's policy to stay Benjamin. Judah's humble supplication to Joseph. First verse से पढ़ेंगे. And he commanded the steward of his house, saying, fill the men's sacks with food, as much as they can carry, and put every man's money in his sack's mouth, and put my cap, the silver cup, in the sack's mouth of the youngest, and his corn money.
And he did according to the word that Joseph had spoken. As soon as the morning was light, the men were sent away, and they and their asses. And when they were gone out of the city, and not yet far off, Joseph said unto his steward, Up, follow after the men, and when thou doest overtake them, say unto them, Wherefore have ye rewarded evil for good? Is not this it in which my Lord drinketh? And whereby indeed he divineth ye have done evil in so doing. And he overtook them, and he spake unto them these same words. And they said unto him, Wherefore saith my Lord these words? God forbid that thy servants should do according to this thing. Behold, the money which we found in our sack's mouth we brought again unto thee out of the land of Canaan. How then should we steal out of thy Lord's house silver or gold? With whomsoever of thy servants it be found, both let him die, and we also will be my Lord's bondmen. And he said, Now also let it be according unto your words. He with whom it is found shall be my servant, and ye shall be blameless. Then they speedily took down every man his sack to the ground, and opened every man's his sack. And he searched and began at the eldest, and left at the youngest. And the cup was found in Benjamin's sack. Then they rent their clothes and laded every man his ass, and returned to the city. And Judah and his brethren came to Joseph's house, for he was yet there, and they fell before him on the ground. And Joseph said unto them, What deed is this that ye have done? Wot ye not that such a man as I can certainly divine? And Judah said, What shall we say unto my Lord? What shall we speak? Or how shall we clear ourselves? God hath found out the iniquity of thy servants. Behold, we are my Lord's servants, both we and he also with whom the cup is found. And he said, God forbid that I should do so, but the man in whose hand the cup is found, he shall be my servant. And as for you, get you up in peace unto your father. Then Judah came near unto him, and said, O my Lord, let thy servant, I pray thee, speak a word in my Lord's ears, and let not thine anger burn against thy servant, for thou art even as Pharaoh. My Lord asked his servants, saying, Have ye a father or a brother? And we said unto my Lord, We have a father, an old man, and a child of his old age, a little one, and his brother is dead, and he alone is left of his mother, and his father loveth him. And thou sayest unto thy servants, Bring him down unto me, that I may set mine eyes upon him. And we said unto my Lord, The lad cannot leave his father, for if he should leave his father would die. And thou sayest unto thy servants, Except your youngest brother come down with you, ye shall see my face no more. And it came to pass, when we came up unto thy servant my father, we told him the words of my Lord. And our father said, Go again and buy us a little food. And we said, We cannot go down. If our youngest brother be with us, then will we go down, for we may not see the man's face, except our youngest brother be with us. And thy servant my father said unto us, Yea, know that my wife bare me 2 sons, and the one went out from me, and I said, Surely he is torn in pieces, and I saw him not since. And if ye take this also from me, and mischief befall him, ye shall bring down my grey hairs with sorrow to the grave. Now therefore, when I come to thy servant my father, and the lad be not with us, seeing that his life is bound up in the lad's life, it shall come to pass, when he seeth that the lad is not with us, that he will die, and thy servants shall bring down
the grey hairs of thy servant are, Father, with sorrow to the grave. For thy servant became surety for the lad unto my father, saying, If I bring him not unto thee, then I shall bear the blame to my father forever. Now therefore I pray thee, let thy servant abide instead of the lad a bondman to my lord, and let the lad go up with his brethren. For how shall I go up to my father, and the lad be not with me, lest peradventure I see the evil that shall come on my father. Chapter 45. Joseph maketh himself known to his brethren, and comforteth them in God's providence. He sendeth for his father. The spirit of Jacob is revived. Then, first verse से पढ़ेंगे. Then Joseph could not refrain himself before all them that stood by him, and he cried, Cause every man to go out from me. And there stood no man with him, while Joseph made himself known unto his brethren, and he wept aloud. And the Egyptians and the house of Pharaoh heard. And Joseph said unto his brethren, I am Joseph. Doeth my father yet live? And his brethren could not answer him, for they were troubled at his presence. And Joseph said unto his brethren, Come near to me, I pray you. And they came near, and he said, I am Joseph your brother, whom ye sold into Egypt. Now therefore be not grieved, nor angry with yourselves, that ye sold me hither, for God did send me before you to preserve life. For these 2 years hath the famine been in the land, and yet there are 5 years, in the which there shall neither be airing nor harvest. And God sent me before you to preserve you a posterity in the earth, and to save your lives by a great deliverance. So now it was not you that sent me hither, but God, and he hath made me a father to Pharaoh, and lord of all his house, and a ruler throughout all the land of Egypt. Haste ye, and go up to my father, and say unto him, Thus saith thy son Joseph, God hath made me lord of all Egypt. Come down unto me. Tarry not, and thou shalt dwell in the land of Goshen, and thou shalt be near unto me, thou and thy children, and thy children's children, and thy flocks, and thy herds, and all that thou hast. And there will I nourish thee, for yet there are 5 years of famine, lest thou and thy household and all that thou hast come to poverty. And behold, your eyes see, and the eyes of my brother Benjamin, that it is my mouth that speaketh unto you. And ye shall tell my father of all my glory in Egypt, and of all that ye have seen, and ye shall haste and bring down my father hither. And he fell upon his brother Benjamin's neck, and wept, and Benjamin wept upon his neck. Moreover, he kissed all his brethren, and wept upon them. And after that his brethren talked with him, and the fame thereof was heard in Pharaoh's house, saying, Joseph's brethren are come. And it pleased Pharaoh well, and his servants. And Pharaoh said unto Joseph, Say unto thy brethren, This do ye, lade your beasts, and go, and get you unto the land of Canaan, and take your father and your households, and come unto me, and I will give you the good of the land of Egypt, and ye shall eat the fat of the land. Now thou art commanded, this do ye, take you wagons out of the land of Egypt for your little ones and for your wives, and bring your father and come. Also regard not your stuff, for the good of all the land of Egypt is yours. And the children of Israel did so, and Joseph gave them wagons according to the commandment of Pharaoh, and gave them provision for the way. To all of them he gave each man changes of raiment, but to Benjamin he gave
300 pieces of silver and 5 changes of raiment. And to his father he sent after this manner 10 asses laden with the good things of Egypt, and 10 she asses laden with corn and bread, and 10 she asses laden with corn and bread and meat for his father by the way. So he sent his brethren away. And they departed, and he said unto them, See that ye fall not out by the way. And they went up out of Egypt and came into the land of Canaan unto Jacob their father, and told him, saying, Joseph is yet alive, and he is governor over all the land of Egypt. And Jacob's heart fainted, for he believed them not. And they told him all the words of Joseph, which he had said unto them. And when he saw the wagons which Joseph had sent to carry him, the spirit of Jacob their father revived. And Israel said, It is enough, Joseph, my son is yet alive. I will go and see him before I die. उत्पत्ति 44 अध्याय। चांदी का कटोरा। तब पहले वचन से पढ़ेंगे। तब उसने अपने घर के अधिकारी को आज्ञा दी, इन मनुष्यों के बोरों में जितनी भोजन वस्तु समा सके उतनी भर दे, और एक जन के रुपये को उसके बोरे के मुंह पर रख दे, और मेरा चांदी का कटोरा छोटे के बोरे के मुंह पर उसके अन्न के रुपये के साथ रख दे। यूसुफ की इस आज्ञा के अनुसार उसने किया। भोर होते ही वे मनुष्य अपने गदहों समेत विदा किए गए। वे नगर से निकले ही थे और दूर न जाने पाए थे कि यूसुफ ने अपने घर के अधिकारी से कहा, उन मनुष्यों का पीछा कर और उनको पाकर उनसे कहे, तुमने भलाई के बदले बुराई क्यों की है? क्या यह वह वस्तु नहीं जिसमें मेरा स्वामी पीता है और जिससे वह शकुन भी विचारा करता है? तुमने यह जो किया है वह बुरा किया। तब उसने उन्हें जा पकड़ा और ऐसी ही बातें उनसे कही। उन्होंने उससे कहा, हे हमारे प्रभु, तू ऐसी बातें क्यों कहता है? ऐसा काम करना तेरे दासों से दूर रहे। देख, जो रुपया हमारे बोरों के मुंह पर निकला था, जब हमने उसको कनान देश से ले आकर तुझे लौटा दिया, तब भला तेरे स्वामी के घर में से हम कोई चांदी या सोने की वस्तु कैसे चुरा सकते हैं? तेरे दासों में से जिस किसी के पास वह निकले वह मार डाला जाए, और हम भी अपने उस प्रभु के दास हो जाए। उसने कहा, तुम्हारा ही कहना सही, जिसके पास वह निकले वह मेरा दास होगा, और तुम लोग निरपराध ठहरोगे। इस पर वे जल्दी से अपने अपने बोरे को उतार भूमि पर रख कर उन्हें खोलने लगे। तब वह ढूंढने लगा और बड़े के बोरे से लेकर छोटे के बोरे तक खोज की, और कटोरा बिन्यामीन के बोरे में मिला। तब उन्होंने अपने अपने वस्त्र फाड़े और अपना अपना गदहा लाद कर नगर को लौट गए। जब यहूदा और उसके भाई यूसुफ के घर पर पहुँचे और यूसुफ वही था, तब वे उसके सामने भूमि पर गिरे। यूसुफ ने उनसे कहा, तुम लोगों ने यह कैसा काम किया है? क्या तुम न जानते थे कि मुझ सा मनुष्य शकुन विचार सकता है? यहूदा ने कहा, हम लोग अपने प्रभु से क्या कहें? हम क्या कहकर अपने को निर्दोष ठहराएं? परमेश्वर ने तेरे दासों के अधर्म को पकड़ लिया है, हम और जिसके पास कटोरा निकला वह भी, और हम सब के सब अपने प्रभु के दास ही है। उसने कहा, ऐसा करना मुझसे दूर रहे। जिस जन के पास कटोरा निकला है वही मेरा दास होगा, और तुम लोग अपने पिता के पास कुशल क्षेम से चले जाओ। बिन्यामीन के लिए यहूदा का निवेदन। तब 18 वचन से, तब
यहूदा उसके पास जाकर कहने लगा, हे मेरे प्रभु, तेरे दास को अपने प्रभु से एक बात कहने की आज्ञा हो, और तेरा कोप तेरे दास पर न भड़के, क्योंकि तू तो फिरौन के तुल्य है। 19 वचन से आगे, मेरे प्रभु ने अपने दासों से पूछा था, क्या तुम्हारे पिता या भाई है? और हमने अपने प्रभु से कहा, हाँ, हमारा बूढ़ा पिता है और उसके बुढ़ापे का एक छोटा सा बालक भी है, परंतु उसका भाई मर गया है, इसलिए वह अब अपनी माता का अकेला ही रह गया है और उसका पिता उससे स्नेह रखता है। तब तूने अपने दासों से कहा था, उसको मेरे पास ले आओ, जिससे मैं उसको देखूं। तब हमने अपने प्रभु से कहा था, वह लड़का अपने पिता को नहीं छोड़ सकता, नहीं तो उसका पिता मर जाएगा। और तूने अपने दासों से कहा, यदि तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारे संग न आए तो तुम मेरे सम्मुख फिर न आने पाओगे। इसलिए जब हम अपने पिता तेरे दास के पास गए, तब हमने उससे अपने प्रभु की बातें कही। तब हमारे पिता ने कहा, फिर जाकर हमारे लिए थोड़ी सी भोजन वस्तु में मोल ले आओ। हमने कहा, हम नहीं जा सकते। हाँ, यदि हमारा छोटा भाई हमारे संग रहे तब हम जाएंगे, क्योंकि यदि हमारा छोटा भाई हमारे संग न रहे तो हम उस पुरुष के सम्मुख न जाने पाएंगे। तब तेरे दास मेरे पिता ने हमसे कहा, तुम तो जानते हो कि मेरे स्त्री से 2 पुत्र उत्पन्न हुए और उनमें से एक तो मुझे छोड़ ही गया, और मैंने निश्चय कर लिया कि वह फाड़ डाला गया होगा, और तब से मैं उसका मुँह न देख पाया। अतः यदि तुम इसको भी मेरी आंख की आड़ में ले जाओ और कोई विपत्ति इस पर पड़े, तो तुम्हारे कारण मैं इस बुढ़ापे की अवस्था में शोक के साथ अधोलोक में उतर जाऊंगा। इसलिए जब मैं अपने पिता तेरे दास के पास पहुंचूं और यह लड़का संग न रहे, उसका प्राण जो इसी पर अटका रहता है, इस कारण यह देख के कि लड़का नहीं है, वह तुरंत ही मर जाएगा, तब तेरे दासों के कारण तेरा दास हमारा पिता जो बुढ़ापे की अवस्था में है, शोक के साथ अधोलोक में उतर जाएगा। फिर तेरा दास अपने पिता के यहाँ यह कह के इस लड़के का जामिन हुआ है, यदि मैं इसको तेरे पास न पहुँचा दूँ तो मैं सदा के लिए तेरा अपराधी ठहरूंगा। इसलिए अब तेरा दास इस लड़के के बदले अपने प्रभु का दास होकर रहने को आज्ञा पाए, और यह लड़का अपने भाइयों के संग जाने दिया जाए, क्योंकि लड़के के बिना संग रहे मैं कैसे अपने पिता के पास जा सकूंगा। ऐसे ना हो कि मेरे पिता पर जो दुख पड़ेगा वह मुझे देखना पड़े। यूसुफ का स्वयं को प्रकट करना। 45 अध्याय पहले वचन से। तब यूसुफ उन सबके सामने जो उसके आसपास खड़े थे अपने को और रोक न सका, और पुकार के कहा, मेरे आसपास से सब लोगों को बाहर कर दो। भाइयों के सामने अपने को प्रकट करने के समय यूसुफ के संग और कोई न रहा। तब वह चिल्ला कर रोने लगा, और मिस्रियों ने सुना, और फिरौन के घर के लोगों को भी इसका समाचार मिला। तब यूसुफ अपने भाइयों से कहने लगा, मैं यूसुफ हूँ, क्या मेरा पिता अब तक जीवित है? इसका उत्तर उसके भाई न दे सके, क्योंकि वो उसके सामने घबरा गए थे। फिर यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे निकट आओ। यह सुनकर वे निकट गए। फिर उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, जिसको तुमने मिस्र आने वालों के हाथ बेच डाला था। अब तुम लोग मत पछताओ, और तुमने जो मुझे यहाँ बेच डाला इससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया है। क्योंकि अब 2 वर्ष से इस देश में अकाल है, और अब 5 वर्ष और ऐसे ही होंगे कि उनमें न तो हल चलेगा और न अन्न काटा जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसीलिए भेजा कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो और तुम्हारे प्राणों के बचने से तुम्हारा वंश बढ़े। इस रीति अब मुझको यहाँ पर
भेजने वाले तुम नहीं, परमेश्वर ही ठहरा। और उसी ने मुझे फ़िरौन का पिता सा और उसके सारे घर का स्वामी और सारे मिस्र देश का प्रभु ठहरा दिया है। अतः शीघ्र मेरे पिता के पास जाकर कहो, तेरा पुत्र यूसुफ यह कहता है कि परमेश्वर ने मुझे सारे मिस्र का स्वामी ठहराया है, इसलिए तू मेरे पास बिना विलंब किए चला आ। तेरा निवास गोशेन देश में होगा और तू बेटे पोतों, भेड़ बकरियों, गाय बैलों और अपने सब कुछ समेत मेरे निकट रहेगा। और अकाल के जो 5 वर्ष और होंगे उनमें मैं वही तेरा पालन पोषण करूँगा। ऐसा न हो कि तू और तेरा घराना वरन जितने तेरे हैं वे भूखों मरे। और तुम अपने आँखों से देखते हो और मेरा भाई बिन्यामीन भी अपनी आँखों से देखता है कि जो हमसे बातें कर रहा है वह यूसुफ है। तुम मेरे सब वैभव का जो मिस्र में है और जो कुछ तुमने देखा है उस सब का मेरे पिता से वर्णन करना और तुरंत मेरे पिता को यहाँ ले आना। तब वह अपने भाई बिन्यामीन के गले से लिपट कर रोया और बिन्यामीन भी उसके गले से लिपट कर रोया। वह अपने सब भाइयों को भी चूम कर रोया और इसके पश्चात उसके भाई उससे बातें करने लगे। इस बात का समाचार कि यूसुफ के भाई आए हैं फ़िरौन के भवन तक पहुंच गया और इससे फ़िरौन और उसके कर्मचारी प्रसन्न हुए। इसलिए फ़िरौन ने यूसुफ से कहा, अपने भाइयों से कहे कि एक काम करो, अपने पशुओं को लाद कर कनान देश में चले जाओ और अपने पिता और अपने अपने घर के लोगों को लेकर मेरे पास आओ। और मिस्र देश में जो कुछ अच्छे से अच्छा है वह मैं तुम्हें दूंगा और तुम्हें देश के उत्तम से उत्तम पदार्थ खाने को मिलेंगे। और तुझे आज्ञा मिली है, तुम एक काम करो कि मिस्र देश से अपने बाल बच्चों और स्त्रियों के लिए गाड़ियाँ ले जाओ और अपने पिता को ले आओ और अपनी सामग्री का मोह न करना, क्योंकि सारे मिस्र देश में जो कुछ अच्छे से अच्छा है वह तुम्हारा है। इस्राएल के पुत्रों ने वैसा ही किया और यूसुफ ने फ़िरौन की आज्ञा के अनुसार उन्हें गाड़ियाँ दी और मार्ग के लिए भोजन सामग्री भी दी। उनमें से एक एक जन को उसने एक एक जोड़ा वस्त्र भी दिया और बिन्यामीन को 300 रुपये के टुकड़े और 5 जोड़े वस्त्र दिए। अपने पिता के पास उसने जो भेजा वह यह है, अर्थात मिस्र की अच्छी वस्तुओं से लदे हुए 10 गदहे और अन्न और रोटी और उसके पिता के मार्ग के लिए भोजन वस्तु से लदी हुई 10 गदहियाँ। तब उसने अपने भाइयों को विदा किया और वे चल दिए। और उसने उनसे कहा, मार्ग में कहीं झगड़ा न करना। मिस्र से चलकर वे कनान देश में अपने पिता याकूब के पास पहुँचे और उससे यह कहा, यूसुफ अब तक जीवित है और सारे मिस्र देश पर प्रभुता वही करता है। पर उसने उनकी प्रतीति न की और वह अपने आपे में न रहा। तब उन्होंने अपने पिता याकूब से यूसुफ की सारी बातें जो उसने उनसे कही थी कह दी। जब उसने उन गाड़ियों को देखा जो यूसुफ ने उसके ले आने के लिए भेजी थी, तब उसका चित्त स्थिर हो गया और इस्राएल ने कहा, बस मेरा पुत्र यूसुफ अब तक जीवित है, मैं अपनी मृत्यु से पहले जाकर उसको देखूंगा। 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान, 2 years बाइबल रीडिंग प्लान, मैथ्यू 7 chapter 21 से 29 वर्सेस, जेनेसिस 19th chapter। 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान, मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय का 21 से 29 वचन और उत्पत्ति का 19 अध्याय। हम 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान जो है 2 years बाइबल रीडिंग प्लान हम अपने पर्सनल बाइबल स्टडी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस साल जब हम 2 साल के बाइबल रीडिंग प्लान के वचन और अध्याय को सुनेंगे तो वो वचन और अध्याय हम अपने पर्सनल व्यक्तिगत समय में वचनों को पढ़ के उसके नोट्स निकालकर परमेश्वर जो हमारे जीवन में करना चाहता है वो हम उसके अधीन रहेंगे, वो बातें उससे सीखेंगे
उसके ज्ञान में जो हमारे अंदर वो और अलग तरह से कुछ प्रकाशन देना चाहता है उन वचनों में से, और कुछ सुधारना चाहता है, कुछ हमारे ज़िंदगी को वो बदलना चाहता है, सब कुछ हम उन वचनों में से ये 2 साल के बाइबल रीडिंग प्लान में से इकट्ठा करते जाएंगे। और एक समय आएगा कि हमने ये वचनों को बहुत भले तरह से अभ्यास करने की वजह से एक अलग सा हमारा लाइफ अलग सामर्थ्य के साथ परमेश्वर को महिमा देने वाला और गवाही होकर आएगा। तो हम 2 साल के बाइबल रीडिंग प्लान को अपने व्यक्तिगत समय में पढ़ के नोट्स लेके इसके अंदर से अपने जीवन के अंदर प्रभु क्या कहना चाहता है वो हम इकट्ठा करते जाएंगे। 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान है, 2 इयर्स बाइबल रीडिंग प्लान। मैथ्यू 7 चैप्टर 21 से 29 वर्स, जेनेसिस 19 चैप्टर। 2 साल के बाइबल रीडिंग प्लान में मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय 21 से 29 वचन और उत्पत्ति 19 अध्याय। प्रभु यीशु हम सबके साथ बना रहे। आमेन, आमेन, आमेन।